A very warm good evening to everyone present here. I'm Prisha Sureja, your host for today's evening, and I welcome you all to the day 3 of Yoga for You, a 7-day holistic health workshop on the occasion of International Yoga Day, and it is organized by Division of Student Welfare, Lovely Professional University. So, for our day 3 of workshop, which is based on the topic strengthening of emotional immunity with psychoneurologic exercises, we have a very eminent guest speaker with us today, and he is Dr. Mahesh Dogra sir. Ladies and gentlemen, let me tell you, Dr. Mahesh Dogra sir has done PhD in Vedic Science and Psychoneurobics from Yoga Samskritam University, Florida. He has done PG Diploma in Psychoneurobics from Tamil Nadu Physical Education and Sports University, MSc in Psychoneurobics. He has also done MBA in Self Management and Crisis Management. And let me tell you, he has 22 years of experience in pharmaceutical industry and 8 years of experience in life insurance as training manager and branch manager. He is an authorized guide for PhD students, and he is running his own healing center in Jalandhar with the name of Divine Wellness Center. So, ladies and gentlemen, please welcome Dr. Mahesh Dogra sir with all your virtual claps and excitement and enjoyment in the chat box. Welcome, sir. We are Thank very you. glad that you are here with us today in this day 3 workshop, and we really enjoyed on day 2 also. And I would also like to welcome all our heads, staff members, participants, and all our virtual viewers who are watching me live here today. I heartily welcome you all. Welcome, sir. Thank you, Parisha. Once again, Thank you, sir. my very sincere thanks to Almighty Authority, Parampita Paramatma, to giving me opportunity to interact with you people. And of course, my very special thanks to Pro VC, Ma'am Rashmi Mittal, and Dr. Saurav Lakhnupal, and all the faculty members as well as students who have once again given me chance to be with you people. Okay, so we'll start just with the recaps. Yesterday we had a good session on chakra healing. Today we'll take the session on that only. So we will just recap. We just uh, we we uh, summarize what Vedic science says, that it is uh, energy Excuse body me, which sir. matters. Yeah, please. Sir, excuse me. Ladies and gentlemen, please welcome our worthy Pro Chancellor, lovely professional university, Madam Rashmi Mittal. My pleasure. She has taken all the time. Welcome, ma'am. Ma'am, welcome, and it will be nice अगर आप प्रकट हों. So, friends, once again we will recap. Yesterday we learned that like our physical body, we have the energy body, and energy body, as per Vedic science, says that it is uh, like it has uh, 114 chakras, that is energy centers, and at the same time it is 72,000 nadi, and of course chakras are 82,000. But our rishi munis, they said कि अगर आप 7 चक्रास के ऊपर ध्यान देते हैं and you are able to मतलब uh, channelize these 7 energy centers, तो आपका, and at the same time we had that how these energy chakras are basically driven by the emotional energy, and we saw the energy graph. We draw energy from the Almighty Authority, and then from mind to brain it becomes spiritual energy, becomes emotional energy. And in these 7 energy centers which are driven by the emotions, like we studied that heart anha chakra is driven by the emotion of love. Yeah, Prisha. है ना? And then Yes, sir. digestive system, that is Manipur chakra or navel chakra, it is driven by the emotion of happiness.
So these are the two emotions which are the major for us to keep ourselves healthy and happy, right? So we have already, and it is recorded also. So again, we will go for the exercise first. Again, tapping therapy, right? And it is wonderful therapy actually. This is a modern yoga, you can say, pranayam, you can say, because for yoga pranayam, of course, we need lot of patience, right? But at the same time, when students are there, they are full of energy. They want something to be halchal wala, right? So yes, we have designed something halchal wala for you. So wherever you are, please, my, I'll just share with you how to go with this. You can. Excuse me, sir. Sir, your mic is mute. Okay, now it is fine. Yes. Yes, Yeah. sir. So we are the energies and we are driving this body. If we say that we are the jockeys and this body is a horse, so when we tap the horse, it works very well, right? So again, students, please, wherever you are, please be with me. So it is tapping therapy. नक्श कदम पर चल बाबा के बाबा जैसा बनना है नक्श कदम पर चल बाबा के Just बाबा like this. जैसा बनना है बनकर भूली हमसे हमें भी और मोती ही चुभना है नक्श कदम पर चल बाबा के बाबा जैसा बनना है बनकर भूली हमसे हमें भी और मोती ही चुभना है And let's do joints, knee joints. So activate your nerves and the knee joints. Now come to calf muscle. Give a tap. जैसे मेरा बाबा है दिव्य गुणों की भर कर खुशबू दिव्य गुणों की भर कर खुशबू फूल रूहानी बनना है बनकर भूली तुमसे हमें भी और मोती चुभना है नक्श कदम पर चल बाबा के बाबा जैसा बनना है बनकर भूली तुमसे हमें भी और मोती चुभना है It is three. सबके सद्बुद्ध रखने वाला पालनहारा बाबा मेरा नेक सागर सबका प्यारा फिर भी वो सबसे न्यारा सबके सद्बुद्ध रखने वाला पालनहारा अपने को शाबाशी दें. नेक सागर सबका प्यारा फिर भी वो सबसे न्यारा गुण अब गुण को चित्त न धर के अब गुण को चित्त न धर के सबको गले लगाना है बनकर भूले तुमसे हमें भी और मोती चुभना है कदम पर चल बाबा के बाबा जैसा बनना है बनकर भूले Now, और मोती चुभना है
a good smile on your face. Yesterday we did this exercise. मीठी वाणी बहन भाग से उमंग मन में बढ़ता है दुख हरता सुख करता बाबा सुख सावन बरसाता है साथ सदा ही उनके रहे साथ सदा ही उनके रहे हम सफर बड़ा ही सुहाना है बनकर भूली तुमसे हमें भी कोई मोटी ही चुगना है नक्श कदम पर चल बाबा के बाबा जैसा Second one. Give a tap. नक्श कदम पर चल बाबा के बाबा जैसा बनना है बनकर भूली तुमसे हमें कोई मोती ही चुगना है कोई मोती ही चुगना है मोती ही चुगना है Clapping to it. मोती ही चुगना है Very good. So this is a very good exercise, very good warm up, and then today we'll go for the dynamic pranayama. So what is that? Actually, this is also designed for the students. Young blood, they don't want to sit, and they don't have that patience. They lie down and all this, you know. So they have the energy and they want to vibrate. So it is like again dynamic pranayama, and I have learned it from the person who was 94-year-old, and his speed was far better than us, right? So it is like just stand like, and then first it is mind, body, soul exercise, right? So it is like throw away, empty yourself, right? How it is goes, like when I throw away, it is not only breath, it is toxins. I'm throwing away all the toxins in my body, right? So it is like all the participants, please do it. Will be relieved. I tell you. Bend your knees. It is done 25 times, right? And then you have emptied yourself, right? And all the toxins are now out. Now you are ready to take God's energy in you along with oxygen, right? So it is feel that I am taking God's energy into me. That is pull. And then bend. So while pulling, pull that I am pulling God's energy, all the happiness, love from God. Okay, then. So this is a wonderful exercise for mind, body, and soul. So because I have to appear in the lecture also, I have to keep my breath under control. Right, ji? 25 times at you will find movement in your lung functioning. Right, ji? Parisha, promise? Yes, sir. So there was a network issue, so I wasn't We'll able practice to it. hear.
Yes, sir, surely I will. करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है ना. Okay. Fine. So again, we'll start with the smile exercise. Yesterday we did a very good exercise. That is, take this one to this and keep this smile. It's a wonderful exercise on this earth. And when you are smiling, you just give a thought that I hate someone. Try. When you are smiling, just try to hate someone. Try to generate some anger, false anger only. Try this. You can't. This is a best exercise. You can't abuse anyone. You can't be annoyed with anyone while smiling. तो स्माइल एक ऐसा कर्व है जो सारी चीजें स्ट्रेट कर देता है. एंड इन lovely professional university we have pro chancellor ma'am. She always keeps smiling. Do you think she has lot of responsibilities, and yes, of course sometimes tensions also. So it's the best medicine. So smile comes out of happiness when you are happy with it. राइट जी. हमने कल एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज, मैंने होमवर्क दिया था सबको. आई होप समबडी एवरीवन वुड हैव डन इट. आपने क्या करना है, मिरर के सामने ऐसे खड़े होना है. राइट, किया था. एंड टेक दिस आर्म बैक. राइट, ट्राई दिस. लाइक व्हाट इज माय एंगल, प्रीशा? Yes, sir. What is the angle of my arm? It must be 90 degree. Okay. And if I put this without calling someone, it won't go. Try this. Don't believe me. Yes. Try this. Just इसको अपने कान पे लगाइए and try this. मिरर के सामने honestly. Keep your body straight and take it. You will find the effect of these radiations. It has gone smart, and we need to be smarter than it. Right जी? So ये छोटा सा exercise कल मैंने बताया था. Hopefully you would have done it. Because all these radiations, all these negative emotions, they impact our chakras and our body mobility restricts. Right जी? So we have understood 7 chakras, है ना, 72 नाड़ीज. और उस नाड़ी में परमात्मा ने, मतलब ऋषि मुनियों ने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया कि अगर ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को आप कंट्रोल में ले लेते हैं तो यू विल बी एबल टू कंट्रोल ऑल द 72,000 नाड़ीज. राइट. एंड इफ यू take control of your 7 emotions. What are the 7 emotions? That is, first is bliss, है ना? Bliss, knowledge, peace, love, happiness, purity, and power. You all want to be powerful, right? And this is कुंडलिनी जागरण, right जी? So मूलाधार चक्र को जब हम empower कर देते हैं तो कुंडली energy flows upward, and then it is the highest frequency. And how it impacts our immunity, we will discuss this, right ji? So in psychonovis, what we do, we don't do any mind programming, right ji? Mind programming we can't do, because mind is designed to think. We generate around 40 to 60,000 thoughts in a day, right? It is meant to. तो जब इसका काम ही है thought generate करना है, and this thought power has done all this development. Somebody thought of flying, na? The aeroplane was created, and उसके बाद तो missiles, and we have now crossed the planets also, right? So it is basically we can't do and we should not do, because this is a power given to us by the God. Now what is happening, this mind power, mind is a powerful, and since we are unable to handle this power, तो होता क्या है, हम इसको यूज करते हैं. ऐसा होता है जब हम अपने सबऑर्डिनेट को हैंडल नहीं कर पाते तो हम क्या करते हैं, उसकी बारे में कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं. तो माइंड इज आवर सबऑर्डिनेट, वेरी पावरफुल, है ना, एंड एट द सेम टाइम वेरी यूजफुल ऑल्सो. बट इट नीड वर्क्स, इट नीड गाइडेंस. इट इज बेसिकली illiterate servant, so you need to handle the illiterate servant, but it has powers, right? और हमने कल देखा कि इसका बॉस कौन है, इंटेलेक्ट. In psychonovis what we do, we concentrate and then activate our intellect.
तो आपका हैप्पीनेस काउंसलिंग जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर ma'am has opened this wonderful shop, lab, that is concentration and cure. So please visit once the university is open. Please visit there and take max best mileage of it. So what we do, empowering, reprogramming the intellect. We strengthen the intellect, right जी? तो उसमें क्या है, 5 steps हैं. 5 steps क्या क्या हैं? First of all, concentration. With the help of these plates, which are thoughtfully designed, God has given this insight. It is stereographic three-dimensional image, right? And like it is different colors. And we have seen the colors represented by the different chakras, right? Different colors. So 7 colors ka hai, right? When we focus on it, 3 to 5 minutes. Brain language is if we focus on something without any miss. If you focus for 90 seconds, our brain start resonating with that color. Color has frequency. So when we focus on this, our frequency rise to 695 trillion hertz. And with this very high frequency, the emotion of intellect, emotion of enlightenment, knowledge, true knowledge, right, that is activated. And this emotion, in fact, is responsible for the healing of our central nervous system, brain and nervous system. Simple, right? And when we focus on it, then it is further, that is 732 trillion hertz. So it's a frequency matching. Einstein also said that 21st century will be the century of the frequencies. So all the colors have frequencies, and these colors, they, with this frequency, our brain cells generate that emotion, and that emotion heals us, because we have understood that diseases are psychosomatic. We have understood yesterday that it is 4 stages: psychosomatic, somatic and organic. और होता क्या है, हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? व्हेन वी आर इन ऑर्गेनिक, लाइक हार्ट में प्रॉब्लम आ गया, किडनी में प्रॉब्लम आ गया, लिवर में प्रॉब्लम आ गया. सो वी हैव टू डू precautions better than cure. Yeah, you have good lab in your university, go there, focus, concentrate and cure, and it let the disease be handled at the level of psycho only. Psycho is what? When there is a little mood swings. Psychosomatic, when mood swings are there, but it persists for 1 or 2 days and we have to take outside something. Somatic is when we have to take the medicine, and organic when we have to take the treatment, not only one medicine or 2 medicines, right? Full treatment. So it is like 5-step therapy: focus, concentration, and then of course automatically the frequency is achieved, then visualization, then mudra. Like for आज्ञा चक्रा, मुद्रा इज प्राण मुद्रा. कल मैंने रिपीट भी किया था, कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी थी, राइट? तो प्राण मुद्रा, एंड विद प्राण मुद्रा ओ साउंड, दैट इज so it is like we are generating this sound, and this is called ultrasound, which is of course capable of healing our central nervous system. And for second one, that is for सहस्रा चक्रा, it is violet color along with humming sound. कैसे करना है वो? जीभ को तालु से लगाया, inhale and exhale, right? So this is कल का हमारा था. अब हम बात करेंगे इमोशनल हाई, राइट? एंड इट इज इमोशनल इम्यूनिटी. सो इमोशनल इम्यूनिटी है क्या बेसिकली? लाइक वी हैव so much knowledge and so much said about the biological immunity, right? And we have understood in this pandemic that it is not medicine which is going to work, it is our own immunity which is going to work. In vaccination also, what we are finding that is to develop the antibodies, and we enhance our immunity to fight with the disease. So Parisha, please run the presentation. Sure, sir. नहीं one by one, please.
So what is immunity? We have understood, right? That is power to fight and power to actually heal our own self, right? That is immunity. We understand. Biological immunity, that is based on the, yeah, yeah. First is healthy diet. Of course, we understand that healthy diet is very good, and that is nutritional diet. But all the things we have just confined to the healthy diet. If I give you healthy diet for 3 days, right? But you are not happy with yourself, and of course, you are not able to sleep properly, right? What will happen to you? Will you be healthy? No. So healthy diet is of course very important. But then again, next, exercise. What we say that we have to do some exercise. We have to be active, and sedentary lifestyle also, and it depletes our immunity. So exercise next, है ना. बायोलॉजिकल इम्यूनिटी के लिए बहुत कुछ जानते हैं. हाइजेनिक लाइफस्टाइल, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी इसके ऊपर बात नहीं करता है. हाइजेनिक लाइफस्टाइल क्या है? बेसिकली मेरा मकसद सिर्फ हाथ धोना या सैनिटाइजेशन करने से नहीं है. हाइजेनिक लाइफस्टाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज बेसिकली कि वी आर respecting the biological clock. At the time of sleep we are sleeping, at the time of sunrise we are active, right? That is the hygienic lifestyle. And so बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं, and that is also very big factor for the biological immunity. Next, sound sleep. Of course, ये sound sleep का मतलब मेरा 8 hours sleep, 9 hours sleep के नहीं है. If you are able to sleep 1 hour, you are able to take 1 hour delta sleep. That is dead sleep. Sleep as good as dead, right? So that is called sound sleep. इसलिए ऋषि मुनि जो हैं वो ज्यादा देर नहीं सोते हैं, right? Because they are able to take that 1 hour delta sleep in 1 or 2 hours only. But it needs lot of practice. Of course, 5 to 6 hours sleep is very good, but the important is delta sleep. वो हमने कल भी बात करी थी. We will discuss कि कैसे साइकोनॉमिक्स से we are able to achieve that sound sleep, that is delta sleep. Right, next, प्रॉपर यूरिनेशन एंड डेफिकेशन. इसके ऊपर भी हम बहुत कम बात करते हैं. देखिए, वेदों में लिखा है कि अगर आप हेल्दी कब माने जाएंगे. हेल्दी से मुराद, एक्चुअली वैदिक साइंस में हेल्दी से मुराद क्या है? बेसिकली दैट इज योर इम्यून सिस्टम इज हेल्दी. इट्स नॉट योर 6 एप्स 5 एप्स और समथिंग, नो, है ना. तो इफ you are supposed to be healthy if your immunity is healthy, right? So what is that? That is, if you are able to eat well, if you are able to sleep well, if you are able to urinate well, if you are able to defecate well, morning में पेट साफ होता है आपका, and you hate no one, you are healthy, and you keep smiling, right? So Prisha, since you are on screen, you have to keep smiling, है ना. That gives me ATP, right? I also get energy from you people. So I know that you people must be smiling, but what I want to see the smile also, right? So proper urination and defecation. Next, please. Emotional immunity. This is very very important, right? We know that diseases are psychosomatic. So answer is psychoneurologics. So we have to take very good care of our psychic. हम सोचते क्या है? So emotion of happiness, and what is that? That we are happy, we are comfortable with ourselves and with the surroundings, है ना. We accept everyone gracefully. Okay जी. So this is very important aspect. Next, emotion of love. If you are loveful, love का मैंने कल भी डेफिनेशन बताया था. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्. जब मैं विश कर रहा हूँ, कामना कर रहा हूँ कि सारी दुनिया खुश हो जाए, सुखी हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड लवफुल इमोशन. नेक्स्ट, इमोशनल हाइजीन. अब ये नया एक और है ना. अभी तक तो बाकी सैनिटाइजेशन वगैरह कर रहे थे. अब इमोशनल हाइजीन क्या है? थिंक बिफोर थिंक. मैं क्या सोच रहा हूँ ये चेक करना बहुत जरूरी है. दैट इज कॉल्ड इमोशनल हाइजीन. इफ आई एम जनरेटिंग अननेसेसरी थॉट्स, माइट बी समटाइम वेस्ट थॉट, हम कहते हैं ठीक है. नो नो नो, वेस्ट थॉट ऑल्सो ड्रेनिंग योर एनर्जी. नेक्स्ट, and meditation. I told you
दो तरह की मेडिटेशन है, दैट इज निद्रा योग, योग निद्रा। अगर आप प्रॉपरली सो पा रहे हैं, लेकिन प्रॉपरली सोने के लिए डेल्टा स्लीप एवरी डे अनइंटरप्टेड, यू नीड टू डू सो मेनी थिंग्स, है ना, आपके सारे चक्रास ठीक होने चाहिए। ओके, सो मेडिटेशन इज दैट। अगर वो उसमें कमी है तो यस, वी हैव क्योर एंड कंसंट्रेशन लैब इन योर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट जी, सिम्टम्स ऑफ डिस्टर्ब बायोलॉजिकल इम्यूनिटी, है ना, ये तो हम सब जानते हैं, फ्रीक्वेंट इलनेस, अगर बार बार, है ना, हिट हो रहे हैं हम, तो दैट इज ऑल्सो बायोलॉजिकल इम्यूनिटी हमारी लो है। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस टू ट्रीटमेंट। अब बढ़िया से बढ़िया भी ट्रीटमेंट मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा है, राइट। नेक्स्ट, वी नो दीज ऑल टर्म्स, है ना, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, व्हाट इज दिस? एक्चुअली हमें कुछ ना कुछ बॉडी में पेन चल रहा है, इधर से हटा तो उधर, उधर से इधर, तो दैट इज क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम एंड इज वेरी कॉमन। नेक्स्ट, एंड जर्नल वीकनेस, दैट इज जनरल डेबिलिटी, राइट। तो ये सारे सिम्टम्स हैं कि मेरी इम्यूनिटी लो है। बिकॉज मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये चीजें भी हम चेक करें, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट गो फॉर द चेक एंड गो फॉर द ब्लड टेस्ट एंड दिस स्कैन दैट स्कैन, नो। ये स्कैनिंग इंडस्ट्री से बाहर निकल के वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बॉडी, वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी शुड बी एबल टू नो द बेसिक्स। मैंने कल भी बताया था कि मेरे घर में पेट है, ही नोज कि आई एम नॉट वेल, राइट, तो उसको पता चल जाता है। तो वी आर ह्यूमन बीइंग्स, व्हाई वी आर डिपेंडेंट सो मच ऑन द आउटर थिंग्स, राइट। नेक्स्ट, रीजंस ऑफ डिप्लीशन ऑफ बायोलॉजिकल इम्यूनिटी, वी नो स्टेल फूड एंड तामसिक फूड। अब ये बहुत ज्यादा है, बच्चे बोलेंगे यार ये तो पीछे पड़ गया, राइट। स्टेल फूड क्या है? जंक फूड। एंड क्यों कहते हैं जंक फूड के लिए? सी, वी ऑलवेज से कि स्टे अवे फ्रॉम तामसिक फूड, जंक फूड। देखिए, फूड कौन सा है? वेदों में लिखा गया कि जो खाना आपका 3 या 4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है, वो खाना एक्चुअली हमारी बॉडी के लिए है। और अगर कोई भी खाना हमारा 3 या 4 घंटे तक डाइजेस्ट नहीं होता है, तो दैट फूड इज नॉट फॉर अस, दैट इज गोइंग टू डिप्लीट आवर एनर्जी। व्हाट हैपेंस, आई नो, वी आर ड्रिवन, हमने कल बताया था कि वी आर ड्रिवन बाय द स्पिरिचुअल एनर्जी, राइट। एंड स्पिरिचुअल एनर्जी हैज टू वर्क लॉट टू डाइजेस्ट दिस फूड। तो हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, या हम व्हाट वी आर डूइंग, हम एक एनर्जी को एक जगह अननेसेसरी वेस्ट कर रहे हैं, दैट वन अ फूड, राइट जी। तो लॉट मेनी थिंग्स हैव टू डन फॉर मतलब टेकिंग केयर ऑफ दिस स्टेल फूड और तामसिक फूड। तामसिक फूड, किसी ने पूछा व्हाट इज दैट? ऑफ कोर्स समटाइम्स सेड दैट नॉन वेज, ऑफ कोर्स नॉन वेज वी आर नॉट मेंट एट ऑल, है ना, उसमें प्रोटीन वगैरह तो है, बट एट द सेम टाइम इन इंडिया वी हैव मतलब 300-400 के आसपास फूड की वेराइटीज है, वी डोंट नीड, है ना, इट इज वेरी वेरी यू नो पैथेटिक दैट गोट वगैरह तो अपना खाना घास से खा रही है और हम उसी को खा जा रहे हैं फॉर द सेक ऑफ प्रोटीन, बट उसके साथ जो टॉक्सिक थॉट्स, टॉक्सिक उसका फियर फैक्टर साथ में अंदर जा रहा है, दैट इज वेरी डेंजरस, राइट। ओके, नेक्स्ट, लैक ऑफ स्लीप। अगेन मैं बात करता हूँ, दैट इज दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन बिकॉज वी डोंट रिस्पेक्ट द बायोलॉजिकल क्लॉक, तो लैक ऑफ स्लीप तो है ही हमारे पास। नेक्स्ट, अनहाइजेनिक लाइफस्टाइल अगेन आ गया ना। सो दिस इज अनहाइजेनिक लाइफस्टाइल क्या है? व्हेन वी डोंट रिस्पेक्ट द बायोलॉजिकल क्लॉक, body is meant to sleep at 10 o'clock because it is with everyone when there is a sunset around 8-9 के आसपास हमारा सेरोटोनिन रिलीज होना शुरू हो जाता है, अराउंड 6-7 के आसपास, when there is the sun is the angle on the angle of 30 degree, so there is automatic release of serotonin level, and then by 9-9:30 this serotonin get converted into melatonin, and melatonin is actually injection for sleep. When we ignore this melatonin, what happens? तो फर्स्ट साइकिल ऑफ डेल्टा स्लीप में बात कर रहा था ना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो लैक ऑफ स्लीप है उसके बारे में बहुत कॉमनली मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं। सो लैक ऑफ स्लीप क्या होता है कि इन 6 or 7 आवर्स स्लीप रात को we are able to take delta sleep the tune of 1 hour, है ना। 1 घंटे का डेल्टा स्लीप हमें चाहिए होता है टू चार्ज अवर बॉडी, राइट। और आप देखिए कंडीशन व्हेन दिस डेल्टा स्लीप इज नॉट देयर, पूरी रात हम सोए लेकिन थीटा स्टेट ऑफ माइंड में सोए, तो सवेरे उठ के हम कहते हैं यार सोया तो हूं मैं लेकिन आई एम नॉट चार्ज अप,
होता है नहीं होता है। एंड इन अदर कंडीशन दोपहर को 15 मिनट का नैप आता है एंड वी आर चार्ज, तो वो 15 मिनट का नैप जो है दैट इज डेल्टा स्लीप, राइट जी। तो ये हमारा साइकिल है, 10 से लेके 12 बजे तक हमें 30 to 40 मिनट्स का डेल्टा स्लीप परमात्मा ने रखा हुआ है, राइट। 12 से लेके 2 बजे तक 10 to 20 मिनट्स का डेल्टा स्लीप है, एंड 2 से 4 बजे तक 10 से 15 मिनट का डेल्टा स्लीप है। सो अगर हम 12 बजे सो रहे हैं तो व्हाट इज हैपनिंग, 40% ऑफ डेल्टा स्लीप गॉन। तो दिस इज व्हाट वी कॉल अनहाइजेनिक लाइफस्टाइल। एंड रेडिएशन का मैंने आपको बताया, आप एक्सपेरिमेंट अपने आप करिए, डोंट बिलीव मी। ओके जी, नेक्स्ट। रिस्टोरिंग ऑफ बायोलॉजिकल इम्यूनिटी वी नो वेरी, है ना, दैट इज फ्रीक्वेंट फास्टिंग। अब ये बोलेंगे पहले हम तो डाइट की बात कर रहे थे तो फास्टिंग की बात कर रहे हैं। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। वेदों में लिखा है कि हर हफ्ते एक दिन तो फास्ट करना जरूरी है, और अगर एक दिन नहीं कर सकते हैं तो 2-3 दिन आप इंटरमीडिएंट फास्ट कर सकते हैं, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमारे जितने भी, और ड्यूरिंग दैट फास्ट वी नीड टू टेक लॉट ऑफ वाटर टू फ्लश आउट ऑल द टॉक्सिन्स, है ना। तो क्लींजिंग बहुत जरूरी है, राइट। नेक्स्ट, सात्विक फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। मैंने पहले बताया सात्विक फूड क्या है, जो जो खाना हमारा 2 घंटे में पच जाए, 2 से 4 घंटे पच जाए, वो सात्विक फूड। फ्रूट्स आर बेसिकली प्री डाइजेस्टेड फूड्स, है ना, वो सनलाइट में ही प्री डाइजेशन हो चुका है, माई बॉडी हैज टू ओनली अब्सॉर्ब इट एंड सिंपली एनर्जी। देन वेजिटेबल्स। नेक्स्ट, hygienic lifestyle again, of course, very important. We have to respect the biological clock. Next, and that will give us good sleep, है ना। So it's very important to do the sleep management. इस दिन फिर लेंगे हम इसका। Next, physical exercise, and then comes physical exercise. Now हो क्या रहा है उल्टा, of course खाना, physical exercise, and then this thing, right? Okay, so this is biological immunity के बारे में बहुत सारी चीज़ें आते हैं। कल श्वेता मैम भी लेंगे इसके ऊपर शायद, है ना। तो दे नो बेटर देन मी, है ना। बट यस, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूटरी हैं टू द बायोलॉजिकल इम्यूनिटी। यस, नेक्स्ट, सिम्टम्स ऑफ डिस्टर्ब इमोशनल इम्यूनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इमोशनल इम्यूनिटी हमारी कब डिस्टर्ब होती है, व्हेन देयर इज एंजाइटी। एंजाइटी इज व्हाट, इरिटेशन फॉर नो रीजन एट ऑल। आपने कल पूछा था व्हाट इज एंजाइटी सर। एंजाइटी इज कोई कारण नहीं, अच्छा खाना पीना सब कुछ बढ़िया हो रहा है, स्टिल वी आर इरिटेटेड, दैट इज एंजाइटी। नेक्स्ट, मूड डिसऑर्डर्स, है ना, ये मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होते हैं, अभी कुछ अभी कुछ अभी कुछ। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एंजाइटी ओनली, या। नेक्स्ट, स्लीप डिसऑर्डर्स, एक दिन सो लिया, अच्छा अगले दिन नींद नहीं आई, इस तरह से। ओके, सो दिस इज स्लीप डिसऑर्डर इज वेरी कॉमन नाउ बिकॉज वी डोंट रिस्पेक्ट द बायोलॉजिकल क्लॉक, है ना। स्टेल फूड भी हमारा जब डाइजेस्ट नहीं होता है तो हमारी स्लीप में पैटर्न में उसका मतलब वी आर अनेबल टू स्लीप प्रॉपरली। नेक्स्ट, रीजंस ऑफ डिप्लेशन ऑफ दिस एनर्जी। यस, देयर आर सो मेनी रीजंस, पर ये प्राइमरी मैंने 3 लिए हैं बिकॉज सारे मैं डिस्कस नहीं कर सकता। जो हमारी इमोशनल इम्यूनिटी हमारी हिट होती है ना, हेटेड, जेलसी, यस, दैट इज ऑल, वी ऑल नो, राइट। एंड वी आर कंटिन्यूसली सैड, और ये सारा जो हेटेड, जेलसी, सैडनेस, ये सारा हमारे इसको कंट्रीब्यूट करते हैं एंजाइटी को, राइट। इफ यू आर एंजाइटी तो देन आस्क योरसेल्फ, है ना, कि समवेयर आई एम नॉट हैप्पी, समवेयर आई एम क्रिएटिंग नेगेटिव इमोशंस, समवेयर आई एम जेलस ऑफ समवन, एटलीस्ट कंपैरिजन तो है ही मेरे। सो दीज आर द चेक्स। एंड देन एंगर। एंजाइटी क्या है, इसको मैं कहता हूँ अति से एंजाइटी, है ना। थोड़ा थोड़ा ठीक है, लेकिन अति जब चली जाती है तो देन इट गेट्स एंजाइटी। एंगर इज डेंजर, एंड एंजाइटी का फिर अगला जो है दैट इज एंगर फॉर नो रीजन एट ऑल, राइट। एंगर इज वन दैट इज थोड़ी देर का पागलपन जिसको कहते हैं, हमें खुद ही लगता है कि यस हाउ फूलिश आई एम जी। नेक्स्ट, फियर। नहीं प्लीज 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 होल्ड होल्ड, यस, बैक फास्ट। फियर, फियर जो है ना, बेसिकली दिस इज वेरी वेरी यू नो डेंजरस, दिस इज वेरी वेरी
और इम्यूनिटी का दुश्मन है ये हमारा। मैक्सिमम एनर्जी हमारी फियर से ड्राइव होती है, खत्म होती है, ठीक है। एंड फियर इज बेसिकली जब सब कॉन्शियसनेस में हमारे किसी भी चीज को लेके एक ताना वाना अपना ही शुरू हो जाता है, एंड दैट इज FEAR, व्हाट वी कॉल इट, है ना, फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल, है नहीं कुछ भी। तो क्या करना पड़ेगा, एनलाइटनिंग करना पड़ेगा, एंड फियर इज ऑफ। हाँ जी, नेक्स्ट। सो एंजाइटी, हेटेड, जेलसी, फियर, ये सब में गेस व्हाट इज द मोस्ट डेंजरस? या प्रेशा आप हैं तो यू कैन टेल मी व्हाट इज द मोस्ट डेंजरस इन दिस? Sir, I think fear. That's the most dangerous. Right answer. Next. Of course, you are my chocolate. It is fear. Right? So fear is false evidence appearing real. अब ये बेसिकली देखिए वेदों में क्या लिखा है, फियर का मतलब हम ना ये बीमारी का जड़ है। बिकॉज अगर हम क्वांटम फिजिक्स में चलते हैं या वेदों को हम क्वांटम फिजिक्स, दैट इज ऑल वन थिंग, क्वांटम फिजिक्स इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द हमारे जो वेदों में लिखा हुआ है, दैट इज कि हम ऊर्जा हैं और हम एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं। यू नो, कल भी मैंने बताया था कि हमारे सारे हीलिंग चक्रास जो हैं उनकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है, राइट। एंड वी एज अ बॉडी आर वाइब्रेटिंग एवरेज ऑन 240 फ्रीक्वेंसी के ऊपर, 240 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं। जैसे कहते हैं अर्थ का फ्रीक्वेंसी इज 28 to 32 हर्ट्ज, राइट। हॉस्पिटल्स के पास जाते हैं तो वहां पर थोड़ा फ्रीक्वेंसी इज लो, बट जितने भी ये इमोशंस हैं, बैड इमोशंस लाइक फियर, इनका फ्रीक्वेंसी इज 0.8 to 14 हर्ट्ज, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, राइट। एंड एट द सेम टाइम जितने भी वायरस, बैक्टीरिया, जितनी बीमारियां हैं उनका फ्रीक्वेंसी भी बहुत लो है। तो व्हाट हैपन व्हेन वी फॉल ऑन दिस, है ना, लो फ्रीक्वेंसी इमोशन, वी आर एक्सेसिबल टू द ऑल इलनेस। और इसको वेदों में क्या कहा, बीमारी, बी का मतलब डर, है ना, मारी का मतलब बने रहना। व्हेन डर हमारे सब कॉन्शियसनेस में बना रहता है तो हमें बीमार होने के चांसेस पूरे पूरे हो जाते हैं, राइट जी। सो नेक्स्ट, हाउ टू एनहांस इमोशनल मेंटल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने समझ लिया, यस, ये सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है। ये जो हेड टॉप कंप्यूटर है, वी हैव ओपनड ऑल द फाइल्स एंड रनिंग विद द ओपन फाइल्स, तो व्हाट विल हैपन, ऑफ कोर्स एनर्जी ड्रेन होगा ना। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वी हैव टू डू इमोशनल फास्टिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इमोशनल फास्टिंग, चेक एंड चेंज द इमोशंस, राइट। फियर के बारे में हमने एक बात कही थी कि लास्ट मतलब अराउंड 40 इयर्स बैक एक डॉक्टर हुए हैं, डॉक्टर गब्बर सिंह, उन्होंने बहुत, है ना, जोर जोर से कहा था, दैट इज जो डर गया समझो मर गया। ऑफ कोर्स सारी बीमारी, राइट। सो कैसे इमोशनल फास्टिंग करेंगे, चेक एंड चेंज द इमोशन। इंट्रोवर्टनेस बेसिकली अंतःकरण में जाना। परीक्षा थोड़ा पीछे चलेंगे, ये एकदम से सारी स्लाइड्स मत खोलिए, पहले Okay, इंट्रोवर्टनेस, sir. then it is no, it's distracting, Yes. okay, yes, इंट्रोवर्टनेस पे लेकर। सो इंट्रोवर्टनेस बेसिकली क्या है कि व्हेन वी, प्लीज पीछे लेके जाओ स्लाइड, इंट्रोवर्ट, यस यस यस, गुड। तो इंट्रोवर्टनेस इज बेसिकली दैट अंतःकरण को देखें, आस्क योर इनर सेल्फ, एम आई हैप्पी, एम आई लवफुल, राइट। सो दिस इज बेसिकली यू विल फाइंड व्हेन वी गो इनवर्ड, है ना, कहते हैं ना अंतर अंतर अंतर, गो इनसाइड, तो व्हाट वी फाइंड इज देयर साइलेंस एंड पीस। And what is peace basically? It's a sweet silence. क्या होता है silence? What is sweet silence? Sweet silence is that I am silent but I am happy. Like a child is silent in his mother's lap but is happy. Yes or no? So introvertness. Next. Control your thoughts. Now how to control our thoughts? बहुत मुश्किल है ना। तो उसके लिए एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन वेयरएवर वी आर, प्लीज
सिट स्ट्रेट, या अपने हैंड्स को इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में। एंड वी आर गोइंग टू डू अ वंडरफुल एक्सरसाइज। अगर हम कर पाए इस तरह से, तो यू विल फाइंड यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर थॉट्स। या इट इज लाइक दिस। इनहेल स्लोली, एक्सेल इवन स्लोली। धीरे धीरे सांस को लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। और इस प्रक्रिया के दौरान ही आपके इर्द गिर्द जो भी आवाज़ें आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करें ग्रेसफुली। लाइक समर्स हैं तो कहीं फैन की, कहीं एसी की आवाज़ आ रही होगी, या कोई भी और मेंबर्स हैं घर के, उनसे आवाज़ आ रही है। एक्सेप्ट दैट साउंड gracefully. Try to listen your inner voice also. There is a beautiful music inside. Try to listen that also. अपना सारा ध्यान अपने फोरहेड के बीच में लेके आएंगे, वृक्ति के बीच में। फील दैट आई एम एनर्जी एंड दिस इज माई बॉडी। आई एम द एनर्जी ड्राइविंग दिस बॉडी। एक्सेप्ट एवरीथिंग। नाउ ट्राई टू सी योर मेंटल स्क्रीन। एक छोटी सी कोशिश करें कि मेरे मेंटल स्क्रीन पर क्या क्या चल रहा है। देयर इज अ टीम, TEAM, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो देखेंगे कि बहुत ही कुछ जो हम सोच भी नहीं पाते, हम दूर दूर तक हमें ख्याल भी नहीं होता, वो सब चल रहा है। अपने आप को एक वेब कैम की तरह, इस वेब कैम देखता है लेकिन कोई ओपिनियन नहीं बनाता है। जो थॉट्स आ रहे हैं मेंटल स्क्रीन पर, उनको आता और जाता देखें। डोंट इंटरफेयर। अब देखें मेरी सांसें भी बहुत ही धीमी हो चुकी हैं। आई एम एब्सोल्युटली फोकस्ड ऑन माई मेंटल स्क्रीन। अब अपने मेंटल स्क्रीन को एक बहुत बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखें जहां पर PIP है, पिक्चर इन पिक्चर। अब देखें छोटी छोटी पिक्चर्स और बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। अब विजुलाइज करें कि मेरे एक हाथ में ब्रश है, एक हाथ में ब्लैक पेंट है। ब्रश को ब्लैक पेंट में भिगो लें पूरी तरह से और अपनी स्क्रीन के ऊपर ब्लैक पेंट कर दें। पेंट योर स्क्रीन ब्लैक, ब्लैक, जेट ब्लैक, डार्क ब्लैक, काला, श्या काला, एकदम से ब्लैक कर दें। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि कुछ ना कुछ कलरफुल फिर बाहर आ जाता है ब्लैक से, उसको फिर से पेंट कर दें। डू इट अगेन एंड अगेन। पेंटेड ब्लैक, ब्लैक, डार्क ब्लैक, जेट ब्लैक, काला, एकदम से काला, ब्लैक, ब्लैक, एब्सोल्यूट ब्लैक। अपनी मेंटल स्क्रीन पे अगर कोई भी चीज़ कलरफुल आती है उसको ब्लैक पेंट कर दें फटाफट। बार बार ब्लैक पेंट करते जाएं। डिप योर ब्रश इन द बकेट एंड पेंट इट ब्लैक। अब देखें मेरा मेंटल स्क्रीन एकदम से ब्लैक हो गया। एब्सोल्युटली डार्क। Enjoy this state of mind. अब अपना सारा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर लेके आएंगे।
अपने नॉस्ट्रल से सांसों को इनहेल एंड एक्सहेल होता हुआ देखें और मन को एक काम दे दें। अपर लिप के नीचे, नॉस्ट्रल्स के बिल्कुल नीचे मन को बिठा दें। मन को कहें, मेरे मन, तुम एक बहुत ही ओबीडिएंट चौकीदार हो। हर सांस जो अंदर जा रही है, हर सांस जो बाहर जा रही है, ये आपकी मर्जी के बिना नहीं होनी चाहिए। एक एक सांस को गिने, मन को ये काम देते हैं। सारा ध्यान अपनी इनहेलिंग एंड एक्सहेलेशन के ऊपर है। योर माइंड इज एट ड्यूटी, माइंड इज ऑन जॉब। थैंक यू। ओपन योर आइज। Yeah, Parisha, I can see you only. Yeah. What do you feel? Sir, it was so peaceful and soothing. Thank you. Thank you. Yeah. Dr. Pansi Thakur has also commented very soothing, very relaxing. Yeah. Okay. Dr. Princey Thakur, I'm sorry. Right? Shruti Gupta, very interesting. Thank you so much. So this is wonderful exercise when we are able to check our thoughts, and it is basically, I told you, we can't reprogram the mind. Mind has that, it is flowing, right? So we have to give it a job. उसको तो काम चाहिए, वो जिन है। आप नहीं काम देंगे तो कोई काम ढूंढ लाएगा, है ना? That's why it is said, your mind is a idol's workshop. खाली क्या होता है? खाली मन शैतान का घर है, right? Okay. So let's come to the presentation, please. Thank you. So how to do emotional fasting? This was emotional fasting. अब ये टाइम थोड़ा हमारे पास कम था, so इसलिए इमोशनल फास्टिंग हमने की, बट यू हैव लर्नड इट, आई होप सो, आई बिलीव सो, एंड दिस इज रिकॉर्डिंग ऑल्सो, सो यू कैन repeatedly say it and do it, practice it, right? When we practice, we are able to control our mind, right? Then emotional cleansing. What is that? Emotional cleansing is when we concentrate, achieve that frequency, visualize, mudra, O sound aerobics, humming sound aerobics, that is emotional cleansing. है ना जी? वो हमने कल भी सीखी, आज भी हमने उसको reiterate किया, right? So this is, yeah. Next, elevated emotional diet. Now, this is elevated emotional diet is what? Like, I am God's child, right? I have all the virtues. I have got this knowledge that I have all the qualities, all the virtues in me. Only I have to manifest them, right? So that is called emotional diet. That we have to take every moment, but it is very important. Morning, जैसे हम उठते हैं तो कभी आप अंगड़ाई लेते हैं, आज तो थकावट नहीं, उठते ही मेक योर माइंड दैट मैं my day is going to be the best today, right? Because God is with me. Or if you are atheist, no problem. The supreme energy is with me. I'm energetic. I'm going to do something wonderful today, right? So that is called emotional diet. You have to take it, right? Next, practice one emotion at a time. This is very important. What happens? We give many commands to the brain, and brain get confused. है ना? तो फिर मन क्या है, वो बड़ा बदमाश है, वो जो इजी वाले होते हैं उसको ले लेता है, या फिर कभी इधर से उधर चलता रहता है।
तो वन इमोशन एट अ टाइम, एंड उसको प्रैक्टिस करिए। सी व्हेन यू गो टू जिम, तो यू आर आस्क्ड टू डू सम प्रैक्टिसेस। उसमें कहा जाता है कि आप पहले इसको थोड़ा मजबूत कर लीजिए, है ना। तो इस तरह से हमने क्या करना है, वन इमोशन एट अ टाइम। तो नेक्स्ट प्लीज, जैसे आपने ले लिया दैट आई एम अ हैप्पी बीइंग, तो आज मतलब मेरे को नेक्स्ट वन वीक पूरा हैप्पी सिंह बन के रहना है। कम वर्ड में आई एम हैप्पी सिंह। तो हैप्पी सिंह कांट क्राई, हैप्पी सिंह कांट कंप्लेन, है ना। कोई ग्रजेस नहीं रख सकता है क्योंकि है ही ना, वो है ही हैप्पी सिंह, राइट। सो ऑलवेज ये एक्सरसाइज करते रहे, आई एम हैप्पी सिंह, गुड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एक थॉट लेके आए, आई एम लवफुल इमोशन। लवफुल इमोशन मतलब आई एम पैशनेट, है ना। दैट इज आई एम विशिंग गुड फॉर अदर्स, है ना। और मैं सबकी मदद करने वाला हूँ आज। दैट इज लवफुल इमोशन। तो एक इमोशन को कम से कम एक हफ्ता चलाएंगे आप, तो यूल फाइंड, तो यू विल बी स्ट्रेंथन्ड इन दैट, राइट। सो दिस इज एक परीक्षा में आपके साथ छोटा सा ना, फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल, एक छोटा सा एक्सरसाइज करें हम। Sure, sir. या आप इसको स्क्रीन से आप बाहर आएंगे, या ओके। आप मेरे दिखे काफ़ी चीज़ें देख रहे हैं, लाइक आप मेरे को तो देख ही रहे हैं ऑफकोर्स, है ना। देन मेरे स्पेक्स हैं, राइट। और Yes, sir. उसके बाद फिर और क्या क्या देख पा रहे हैं पीछे। Sir, I can see the banner of Divine Wellness Center. I can see फाइन, plants. या तो अभी आपने क्या करना है, आपने कोई भी इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट को लेके एक सेंटेंस बनाना है। बट द गेम का रूल क्या है, व्हेन आई से बाबा, तो उस सेंटेंस को आपने विड्रॉ कर देना है, फिर नया सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस जरूर Okay. बनाना है आपने, राइट। या तो स्टार्ट द गेम, यस। Sir, I had a doubt. बाबा, If, यस यस, यू हैव टू sir, मेक द सेंटेंस। व्हाट इज द डाउट, पहले डाउट क्लियर कर लें। sir, like you said that I need to pick one object. So I हाँ have to जैसे, make sentence on that, right? या मेरे ग्रे हेयर हैं, उस पर सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। Okay. तो इस तरह से कोई भी, बट जब मैं बाबा बोलूंगा तो आपको सेंटेंस विड्रॉ कर देना है, नया सेंटेंस बनाना है, फाइन। Okay. या Okay. स्टार्ट। Plants are green. बाबा, There is a बाबा, divine wellness center. बाबा, नो नो, यू विल, जैसे बाबा हुआ तो अब कंप्लीट नहीं करना उसको, यस। Okay. There is a divine बाबा, wellness center. या Yellow color बाबा, is there. बाबा, या देयर, फिर आ गया बाबा के बाद कुछ नहीं, फिर वो आपको Okay. पेनल्टी लग Okay. जाएगा, तो आपका Okay. चॉकलेट कैंसिल हो जाएगा, यस। नेक्स्ट, ओके। There is a बाबा, person. There was a बाबा, pet. बाबा, बाबा, ये, यस यस, प्लीज प्लीज, सेंटेंस बनाना आता है आपको। Yes. There's a curtain. बाबा, बाबा, नहीं, कर्टन बाद में चला, देर के बाद बाबा आ गया था, ओके। नेक्स्ट, There's a red color बाबा, in the banner. बाबा, बाबा, There's an orange बाबा, color. बाबा। See what is happening now? Now you are getting irritated. Yes or no? That what is the fun to invite me to make any sentence if he is not allowing me to complete the sentence, right? So you are getting irritated, you are getting annoyed, correct? So the same technique we have to apply to our mind also. When we see that there are lot is bombarded of by the thoughts, right? So use this technique, Baba technique. Like my mind says, so and so Baba. Last year Baba, 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 right? So this is called shut up treatment to the mind. What will happen? It will stop talking to you. हम किसी को बोलने नहीं देंगे तो क्या बोलेगा, जा यार मैं बात ही नहीं करूंगा। तो सेम we have to apply with our mind. See, mind is our servant. Mind is our subordinate, but it is illiterate subordinate. Okay, so yeah, please next slide. Yes. Okay, next slide please.
सो yesterday मैंने बात करी थी, नहीं प्लीज, हाँ बस ये. So we talked about the two things that in psychonomics what we do, it's a Vedic science, and Vedic science said that we have only one medicine for all the disease, that is loveful medicine. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu nirana, sarve bhadrani pachantu, ma kasya dukha ave. That I am wishing good for everyone. पूरी कायनात की, मतलब सिर्फ इंसानों के नहीं, मैं कायनात में मतलब जीव जंतु जानवर और वनस्पतियां सबकी दुआ करता हूँ, है ना. इस तरह से मैं पांचों तत्व जो मेरे शरीर में है उनके लिए भी मैं आई विश गुड, है ना, गॉड्स एनर्जी फॉर देम, राइट. तो दैट इज बेसिकली लव. वी हैव ओनली वन मेडिसिन, लव, एंड इट इज टू बी टेकन विद अ ग्लास ऑफ हैप्पीनेस, ग्लास फुल ऑफ हैप्पीनेस, राइट. सो सिंपल कॉज क्या है? इफ आई एम हैप्पी आई एम हेल्थी. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थी? If I'm healthy, so I am passionate to work, passionate to do something, and I want to do work, not I have to do work. Right? So happy, the one who is fearless is happy. Okay. So happiness का actually एक precursor है. Happiness cycle जो है इसको समझते हैं कि ये दवाई मिलेगी कहाँ से मेरे को, right? चलिए next. Happiness का raw material is contentment. Right? If we are contented whatever we have, contentment का मतलब प्रोग्रेस को रोकना नहीं है ना. I will definitely go for the betterment, but at the same I am enjoying whatever we have. That is contentment. Next, acceptance. Contentment will come from the acceptance, है ना. We have understood that acceptance is the raw material for the contentment. मैं अगर accept नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, तो फिर contented नहीं है. Next, and acceptance comes from love, है ना. अब देखिए, मैं अपने बच्चे को एक्सेप्ट करता हूँ, क्यों? वो कितना भी शरारत करे, कुछ भी गलत करे, बिकॉज आई लव हिम. और यही शरारत अगर पड़ोसी का बच्चा करे, राइट, इसी तरह से वट एवर आई हैव, आई लव दैट, दैट्स व्हाई आई एक्सेप्ट इट, राइट. नेक्स्ट, एंड लव कम्स फ्रॉम रिलेशन, है ना. जिसका रिलेशन उसी के साथ प्यार है हमारा, टू अंडरस्टैंड. सो रिलेशन कम्स फ्रॉम नेक्स्ट एंड्योरेंस, है ना. मदर हैज रिलेशन विद द चाइल्ड बट शी हैज पेशेंस, है ना. मैं आपको छोटी सी बात अपने साथ करता हूँ. लाइक माय सन, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था लास्ट में, तो काफ़ी प्रॉब्लम था. डॉक्टर ने कहा कि शायद प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकता है. एंड आई वॉज समवेयर एग्रीइंग, बट आई सॉ माई वाइफ, शी सेड नो नो, ऐसा नहीं करेंगे. तो मैंने देखा कि हाउ पावरफुल शी इज. सारी प्रॉब्लम, सारी दिक्कतों के बावजूद भी, है ना, शी वांट टू कीप दैट बेबी फॉर अनदर 1 month, क्योंकि उसको प्रॉपर उसका नरिशमेंट करना, राइट. सो ये कहाँ से आया? लवफुल इमोशन, जो शायद फादर के पास नहीं होता है. तो ये वात्सल्य जो है, राइट, वी हैव टू जनरेट. नेक्स्ट, एंड इट कम्स फ्रॉम नॉलेज. अगर ज्ञान है, ठीक है, सही परख है, ओनली देन दिस एंड्योरेंस विल कम. नेक्स्ट, नॉलेज कहाँ से आया? एंड सबसे दुनिया सबसे बड़ा नॉलेज क्या है? वी ऑल आर एनर्जीज. आत्मा आत्मा भाई भाई, हम कहते हैं ना, हिंदू चीनी भाई भाई, है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब भाई भाई. कैसे? वी आर वन नेशन, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, राइट. वी आर बेसिकली एक्चुअली एनर्जीज. और अथर्ववेद में कहा गया हम सभी ऊर्जाएं हैं, हम सबका एक चुंबकीय के क्षेत्र है, एंड वी अट्रैक्ट पीपल लाइक द ऑरा वी हैव, राइट. अब देखिए, एक आदमी जो थोड़ा शरारती है, वो नए किसी टाउन में जाएगा, वो शरारती लोगों के साथ दोस्ती कर लेगा, और एक थोड़ा सा धार्मिक है तो वो उस तरह के लोगों के साथ अट्रैक्ट कर लेगा, राइट. सो द बिगेस्ट नॉलेज ऑन दिस अर्थ इज दैट वी आर एनर्जीज एंड वी आर एक्सचेंजिंग फोटोन्स विद ईच अदर, राइट. एंड कौन से? लवफुल एक्सचेंज हमारा होता है. नेक्स्ट, और सबसे उससे बड़ा ज्ञान क्या है? दैट इज one source of energy, that is God. We all take only energy from the God, and
that is the source of happiness, right? तो जब हम सबका मालिक, हम सबका पिता एक है, we all are born to love each other, and that is the love, right जी? So this happiness cycle याद रहेगा, so we are happy and healthy, right? And continuously with the God's love. So I think next slide. Thank you so much for your patient hearing. आपने बहुत ध्यान से मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, परमपिता परमात्मा का धन्यवाद, and all the faculty members, Pro Chancellor ma'am, thank you so much for giving me this chance to share with you this divine science. Thank you. Thank you, sir. Oh, Manvendra ma'am, thank you ma'am. Ma'am आप प्रकट हुई. हाँ, मैं प्रकट ही थी सारा. आपने कैसे? नहीं, स्क्रीन पे भी प्रकट होंगे. All the time. I request everyone that please अगर अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? सो मैं कुछ अच्छा सुनना चाहूँगा. Any question please? कोई क्वेश्चन नहीं. आई एम सच अ गुड टीचर. या आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं? एकदम क्लियरली समझ आ गया सब कुछ सर. सो आप इमोशनल फास्टिंग करेंगे? यस सर. है ना? प्लीज डू इट. इनवेरिएबली इसको करना है, इमोशनल फास्टिंग को. इनवेरिएबली इमोशनल डाइट को लेना है ना? एलिवेटेड डाइट. दैट मैं तो परमात्मा का बच्चा हूँ, मेरे अंदर सारी एनर्जी है, सारी शक्तियाँ हैं, ओनली आई हैव टू मैनिफेस्ट. और मैंने अब तरीका भी सीख लिया हाउ टू मैनिफेस्ट, है ना? तो दिस इज ऑल. इमोशनल इम्यूनिटी को आप स्ट्रांग रखेंगे. स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड बी लवफुल. Thank you so much, sir. It was such a wonderful session and I really enjoyed. Like, I was present in yesterday's workshop also. I was present in today's workshop also. It was such an honor to listen to you, and thank you so much for your precious time and for your valuable presence. And thank you to our worthy Pro Chancellor ma'am, all our heads, staff members, and all our participants.